I want to. Okay. Many people know Hindi. How many of you know Marathi? How many of you know Marathi? Okay. 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 And first of all of you, please put up your real names there. Put up your real names. Okay. Do not put any other name, like for example, Realme, OnePlus Nord. Please change your name. Don't put their IP address and all, iPad and all. Don't put their Cambridge one. Please put up your rename yourself and put up your real names there. Put up your real names, please. Not in the chat box. Not in the chat box. Not in the chat box. आप लोगों को आपका रियल नेम लगाना है, रीनेम करना है आपके नाम को लिस्ट के अंदर. ओके, चैट बॉक्स में नहीं डालना है आपको. Why I'm asking all these things to you over here? Because I'm going to speak here in your native language as well, and I'll be teaching you at your own platform. आपके खुद के एक प्लेटफॉर्म पे एक स्टेटस पर आकर मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ. That's why I was just asking you, how many of you know Hindi, how many of you know Marathi, how many of you know English, how many of you know the other language as well, so we can just go with a very fluent and very great platform as well. So we're going to make the good base so that we can understand and we can get to know the people as well. Okay, so I can see here the people are joining still. Hope for the best. I would like to introduce myself to let's go ahead. So finally the day is here, guys, that today we are going to transform ourselves into a very good cocoons of different kinds of profession. आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश के अंदर आज तक आप लोगों ने चीजें नहीं सीखी थी, आपको किसी ने बताया नहीं था, वो चीजें मैं आप लोगों को आज यहाँ पर इंग्लिश में बताने वाला हूँ. That how can you see in English the things. Now for example, आज बहुत सारे लोगों को एक ही प्रॉब्लम है, मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती है. लोग बोलते हैं मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती है. I can't speak English. People say like this. Always remember the first thing is what? Never say never. कभी ना नहीं बोलना है आप लोगों को. Never say never. Always remember. Whenever you are going for anything, just go and speak up. Now, for example, how people are speaking there. My name is Paul. I'm married, and my wife's a doctor. We have 2 children. My daughter is 8, and my son is just 3. My name is Isabel. I'm 19 years old, and I'm a student at university. I have one brother. His name's Alan. My mother's a teacher, and my father's a taxi driver. Oh my God! The way of speaking must show what exactly you are. Communication is magic. I always say this to my students. Communication is magic. Why? Because that communication is going to make you billionaire in your life. Remember this. Now, how will you speak and how are you introducing yourself and how are you speaking in front of the public? That will matter a lot. आप लोग बात कैसे करते हैं किसी के सामने, क्या बात करते हैं, कैसी लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करता है. सेम केस, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, my name is Ansar Idrisi. This is normal. My name is Ansar Idrisi. I'm Indian. I'm from Pune. My father is a priest and my mother is a home mentor. This is what the great accent of international UK, US. If you want to work in a company, you have to go through this one. So just forget my introduction and all. We'll be going ahead towards our main mission. So I believe that all of you are ready to have the transformation from myself. Now please put it into the chat box that all of you are ready. Ready to get that? What exactly I'm going to show you today? Please put it into the chat box. Thank you. Good. Ready for the demo? Ready for the things? Great. Okay, so without wasting your time, without wasting my time more, we are going to go towards our demo, and that I'm going to share with you here. I hope that you're able to see my screen as well. And what other things are there? I'll be asking you. You are going to put it into the chat box, literally. Okay? I hope you're able to see my screen. Good. Now, today I'm going to share with you here a grand demo from Cambridge Tutorials for international English and communication skills. Now, one more thing is there. The moment when we speak about communication, what do you think? English mein baatcheet karna hai. The people, they think that, oh my God, English, I'm so nervous. Let me tell you, English is nothing. The first statement from my side is what? English is nothing, that you can speak English fluently.
This is what my guarantee that I'm going to share with you today in this webinar. Now have a look here. As you can see here about myself, a short introduction I'm going to tell you about myself. I'm Ansar Idrisi. I'm 27. I'm not married. I'm Indian. I'm from Pune. My father is a priest and my mother is a homemaker. I'm an international English growth hacker, communication skills trainer, IELTS coach, interview skills trainer, and public speaker as well. So as I'm basically from Pune only, so I'll be giving you a great webinar on speaking in English, how to speak up in English, how to speak up in public, how to crack an interview, how to go in front of the public to speak up in English. आपको मैं आज multiple चीजें बताने वाला हूं. For that, get ready for the transformation about English. मैं आज आपके साथ में कुछ ऐसे tips, ऐसे hacks, ऐसी चीजें share करने वाला हूं that are going to become eye opener for you. आपकी आंखें खोल देंगी वो चीजें. So let's begin with our great demo. I believe that all of you are ready for the transformation. Let's go ahead. Now, the first thing is coming about module. What exactly do I teach over here? We have literally 3 modules in English from my side. I do not teach from any other local books. I teach only from Oxford and Cambridge books. That's it. So we have 3 modules in our English. That's what basic, intermediate, and advanced. Means what? From basic ABCD till top level. Each and everything I'll be showing you. आपको मैं basic ABCD से लेकर तो top level तक के हर एक चीज पढ़ाऊंगा. ABCD लोग बोलते होंगे कि यार ABCD तो हमको आता है. No, I can prove that some of the people are there and they are speaking very wrong English because of their basic ABCD. आज हमारे यहाँ पे ABCD हम लोग जो बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? ABCD, EFG, wrong. That's what A, B, C, D, D, E, F, G, हम बोलते हैं यल यम यन. G, H, I, J, K, L, M, N. That's what ABCD. Now some of the people might be thinking, oh my God, he's teaching ABCD. ABCD basic है. वो basic ही नहीं आता है जिसकी वजह से हम लोगों को आगे का English नहीं आता है. So I'll be teaching you from basic ABCD till advanced level, each and everything. Advanced level से मतलब क्या है? आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ. Next one, if you see here, types of English. Now this is quite interesting. English के अंदर कुछ अलग-अलग types आते हैं. What are the types of English? For example, we have local English and another we have international English. The biggest difference between local and international English is what? Pronunciation. Sound. आज फॉरेनर बात करता है, कैसे बात करता है? मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था. एक अपना इंडियन बात करता है, एक फॉरेनर बात करता है, दोनों में बहुत फर्क होता है. अपना इंडियन बोलते हैं व्हाट इज योर नेम एंड फॉरेनर व्हाट्स द नेम. साउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है. इफ यू वांट टू वर्क इन एन इंटरनेशनल कंपनी, इफ यू वांट टू अर्न रियली ऑसम मनी, you have to work in an international company. For that you should know international English. अगर आपको हाई लेवल की, बड़ी लेवल की कंपनी में काम करना है, बड़े लेवल पे काम करना है, तो वो MNC में आप लोग को जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल कंपनी में जाना पड़ेगा. वहां पे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा और वो इंटरनेशनल कंपनी में काम करने के लिए आप लोगों को इंटरनेशनल इंग्लिश आना चाहिए. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज व्हाट विद द प्रोनाउंसिएशन वी हैव इन लोकल इंग्लिश एंड इंटरनेशनल इंग्लिश. दैट्स व्हाट प्रोनाउंसिएशन. फॉर एग्जांपल, लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीपल से गल. लोकल इंग्लिश में लोग बोलते हैं गल. गल का मतलब होता है बगला. पानी में बगला होता है ना, पाण्यात बगड़ा असतो ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गल. अगर मैं किसी लड़की को बोलता हूं शी इज अ गर्ल, मतलब वो बगला है, पकड़ के मारेगी. ये सुनो, हे मुझे गर्ल बोल रहा है. गर्ल इज अ बर्ड. एक्चुअली लड़की को बोलते हैं इंग्लिश में गर्ल. दैट्स व्हाट गर्ल. बोलने का जो साउंड होता है, जो तरीका होता है, दैट चेंजेस. हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं लोग? गर्ल. वो लोग गर्ल है. गर्ल मीन्स व्हाट? बगला होता है ना पानी में, उसको गर्ल बोलेंगे. बोलना चाहिए था हम लोगों को गर्ल. शी इज गर्ल. How foreigners are speaking, I'm going to give you the great tips about that. I'm going to share with you some of the great hacks. Let's go ahead. That's what girl. She's girl. Getting it? Next one. So the biggest problem is with the pronunciation. क्यों, क्या, कब, कैसे, आगे चल के मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में बताऊंगा. कोई कोई चीजों को हम लोग को कैसे बोलना होता है, कैसे हम लोग बोलते हैं इसको. Next one, that how many vowels do we have? अभी एक basic question है मेरा आप लोगों से. I'll be asking you multiple questions. How many vowels do we have? इसका आंसर सबके पास में हो सकता है. इंग्लिश के अंदर vowels कितने हैं? बहुत ही सिंपल चीज है. We have 5 vowels in English. Those are what? A, E, I, O, U. We have 5 vowels in English. Those are what? A, E, I, O, U. But my question is what?
Why vowels are vowels? Why vowels are vowels? Why are they vowels? B is not a vowel in English. C is not a vowel in English. L is not a vowel. J is not a vowel. K is not a vowel. Only 5 vowels we have in English. I guarantee you guys that even the teachers don't know why vowels in English. Why do we have only 5 vowels in English? Teachers लोग को भी पता नहीं है. मैं teachers के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? Because even the teachers, I've been teaching doctors, teachers, lawyers, engineers, inspectors since 2011. 2011 से मैं डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, इंस्पेक्टर्स ये लोगों को पढ़ाते आ रहा हूँ. टीचर्स लोगों को भी पता नहीं है why vowels are vowels. Now let me tell you guys one more thing. Basic हमारा कमजोर है. We don't have our basic. It is really very weak. तो पूरा बिल्डिंग कैसे खड़े रहेगा इंग्लिश का? We don't know why vowels are vowels. What is the vowel in Marathi? What is vowel in Urdu? What is vowel in Hindi? हमको खुद के लैंग्वेज का मालूम नहीं है. The harsh reality. The vowels are vowels. You will find on my YouTube channel. उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ हूँ. You can get there. Full answer in detail. Only 5 vowels we have in English. क्यों है? किसी को मालूम ही नहीं है. G vowel नहीं है. J vowel नहीं है. K vowel नहीं है. L vowel नहीं है. Z vowel नहीं है. क्यों? People say like this. No, मुझे नहीं पता है. But I won't say like this. Next one. Let's go for the next one. क्यों है, क्या है, आपको सेशन में आगे पता चलेगा. नेक्स्ट, व्हाट केम फर्स्ट. अब एक मेरा क्वेश्चन है. अपन यहाँ पे हिंदी में बोलते थे, अपने इंडिया में बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं. पहले अंडा आया क्या मुर्गी आई? यस और नो? व्हाट केम फर्स्ट? पहले अंडा आया क्या मुर्गी आई? वो एक थर्ड क्लास सवाल था. मैं आप लोगों से दूसरा सवाल करने वाला हूँ. स्पोकन इंग्लिश पहले आया कि रिटन इंग्लिश पहले आया? हमारे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे जितने भी लोग मिलते हैं, अपने यहाँ पे सबसे बड़े एडे लोग कौन है? सॉरी टू से दिस. वो लोग आकर सबसे बोलते हैं ग्रामर सिखाएंगे क्या? ग्रामर है क्या? ग्रामर इज नॉट एवरीथिंग. रिमेंबर गाइस, ग्रामर इज नॉट एवरीथिंग. ग्रामर सब कुछ नहीं है. व्हाट इज द प्रूफ? आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द प्रूफ. जो भी कुछ मैं बात करूंगा यहाँ पर आज, बिना प्रूफ के कोई भी बात नहीं करूंगा. इफ यू सी देयर, स्पोकन इंग्लिश केम फर्स्ट. व्हाट इज द प्रूफ? द प्रूफ इज व्हाट? स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश. उसके अंदर से पहले स्पोकन इंग्लिश आया, बाद में रिटन इंग्लिश आया. व्हाट इज द प्रूफ? द प्रूफ इज हियर in this channel. See here, I'm going to share with you that literally a video. See, in this video, a girl is there. And see. That's when I woke up. My dad said there's 2 things that we can up in the morning. 1, coffee, and 2, sleeping back. Looking at me, dog. My mom said sometimes she wonders if she had too much coffee. And sometimes she wonders if I had too much cake. Now, guys, I would like to say a very simple thing to you. I would like to say a very simple thing to you is what? A kid is there. She's only 4 or 5 years old. She doesn't go to school, but she speaks English. वो स्कूल नहीं जाती है बच्ची, but वो इंग्लिश बोलती है. कैसे बोलती है? क्या उसको ग्रामर पता है? नहीं, पर फिर भी वो इंग्लिश बोल रही है. I want to teach you English literally in a natural way. मैं आप लोगों को इंग्लिश एकदम नेचुरल वे से पढ़ाऊंगा. आपको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप लोग बोलना स्टार्ट करेंगे पब्लिक में विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. नेचुरल इंग्लिश बोलो. सीकर इंग्लिश कोई भी बोलता है, मैं आपको नेचुरल इंग्लिश बताऊंगा. वो बच्ची छोटी है, उसको ग्रामर का जी भी पता नहीं है, बट शी इज स्पीकिंग इंग्लिश. हाउ? Miraculously. This is what exactly I'm going to share with you here. Let's be with me. Next, the second thing is what? Articles in English. Grammar. अब ये ग्रामर का चटका दिया ना मैंने आप लोगों को. ग्रामर के बारे में देखते हैं. In English we have 3 articles. Those are what? A, an and the. A, an and the. The को रख देते साइड में, A, an के बारे में पढ़ते हैं. Now let me ask you one simple question and you people are going to answer me in the chat box. Okay? You people are going to answer me in the chat box. What can I put there before university? This is a university or this is an university? Can you please tell me? What can I put there before university? Answer me, please. This is a university or an university? Okay. Okay. Good. Nice. A university or an university? That will matter a lot. बहुत ज्यादा मैटर करता है. कैसे? अब अगर हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के पहले हम लोगों को लगाना क्या है, अ लगाना है कि एन लगाना है, सबसे बड़ा चैलेंज है. कुछ लोग वहां पर, अगर आप लोग देखेंगे चैट बॉक्स में, कुछ लोग बोल रहे हैं ए लगाना है, कुछ लोग बोल रहे हैं एन लगाना है.
नाउ अब थोड़ा सा सर्कस है यहाँ पर. सर्कस क्यों है? Because I'm going to share with you something really amazing that is going to open your eye. आपका आंखें ही खोल देंगी वो चीजें. What is that? Let me share with you my screen. Are you able to see my screen? अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है. बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, राइट? गुड वन. Oh, Sujit, my old student. Wow. Glad to see you here. Very nice. If you see here, please आप लोग अपने अपने नाम से अपने आप को ये कीजिए, रीनेम कीजिए अपना. रेडमी वगैरह मत डालिए प्लीज. रेडमी वन प्लस, आपका जो खुद का नाम है ओरिजिनल वो डालना है आपको. Now if you see here, university, before university what shall we put there? यूनिवर्सिटी के पहले हम लोगों को लगाना क्या है? क्या लगाना चाहिए? ए लगाना चाहिए कि एन लगाना चाहिए? अब यहाँ पे सबसे बड़ा सर्कस ये होता है कि क्या लगाना चाहिए. अब हम लोगों को स्कूल के अंदर टीचर ने क्या बताया था बचपन में? बेबी, whenever we are going to use their a for what? For consonants in English. Okay, whenever a word is starting with a consonant, we are going to use their a. For example, a game, game G is what? Consonant. A pot, pot P is what? Consonant. A man, man M is what? Consonant. A nail, nail N is what? Consonant. A bed, bed B is what? Consonant. Correct? And when do we use an in English? We use an for vowels. How many vowels do we have in English? A, E, I, O, and U. We have 5 vowels in English. A, E, I, O, U. For that we are going to use their N. For example, N, apple. Apple A is what? Vowel. Next, N, egg. Egg is what? Vowel. Next, N, ice cream. Ice cream I is what? Vowel. N, owl. Owl O is what? Vowel. Next, N, umbrella. Umbrella U is also vowel. Correct? But what can we put before university? If you see here, university is starting with U. Some people are saying an. Wrong. We are going to put there a university, not an university. Why? Because if you see there, the sound of university is coming what? University. 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 The sound is coming what? With Y. And Y is not a vowel. Y is not a vowel. So we are not going to use their N. We are going to use their A. Y is a consonant. What do you mean by consonant? Vowels को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स इंग्लिश में होते हैं उनको सबको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट हो रहा है वो वाई से स्टार्ट हो रहा है. इसका साउंड, साउंड मैटर करता है. स्पोकन इंग्लिश पहले आया, मैंने अभी बोला था आप लोगों को. साउंड मैटर्स अ लॉट. सो a university, not an university. Same case, I have some other questions too. For example, I sent her dash SMS. Answer क्या आएगा? A और an SMS. A SMS or an SMS. Answer please in the chat box. Faster. Right. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice. An SMS. अब यहां पर आप लोगों ने कैसे बोला? यहां पर an आएगा. SMS, S is not a vowel. S vowel नहीं है. S consonant है. But we are going to use the an. Why? Because the sound is there. S M S. SMS. I'm not saying sir, ma, sir. I'm saying SMS. A is what? It is what? A vowel sound. That's why we are going to use the an. Same case, another one. For example, he is dash HOD of my college. If you see in this sentence, what shall I put there? A or N? He is dash HOD of my college. Again, there is what? N. Again, if you see here, H is not vowel, but still we are using here N. Why? We are using here N, NHOD, because the sound is what? H. मैंने अभी आप लोगों को बोला बेसिक ABCD बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझती नहीं बात. NHOD, H, H, H. The sound will matter a lot. Sound matters a lot. NHOD, NHOD. ये बेसिक ग्रामर आपको कंपनी के इंटरव्यू में पूछ सकते हैं. अगर ये बेसिक ग्रामर नहीं आया वहां पर फेल हो जाएंगे. फेल हो जाएंगे छोटी सी चीज के लिए. This is what English. ये चीज आपको बाहर सीखने नहीं मिलेंगे. How many of you are thinking and feeling that it is absolutely new for me? कितने लोगों के लिए न्यू है? Please put it in the chat box. कितने लोगों ने आज कुछ नया सीखा है कि कुछ नया मिला है? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए जल्दी. थैंक यू. नाइस नाइस नाइस.
Great. That's really great. So this is what actually new concept for some people. This is not only enough over here. I'm going to share with you some of the great glands and some of the great charms I'm going to give you here. So आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें और बताने वाला हूँ. So ऐसे एक नहीं बहुत सारी चीजें. What exactly are we going to use there? For example, ऐसी जो बहुत सारी चीजें ग्रामर के अंदर आती है, क्यों, क्या, कब, कैसे, देखते हैं आगे. So before university we are going to use there a university, not an university. सेम केस एग्जाम्पल में और दे सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल अ यूनिट, एन यूनिट नहीं बोलेंगे. व्हाई? बिकॉज यूनिट स्टार्टिंग विथ वाई. द साउंड इज व्हाट? यूनिट. यूनिट, वाई. अ यूनिट. नेक्स्ट अ यूटेंसिल. अ यूटेंसिल, अगेन यू साउंड इज देयर. अ यूनियन, again a union, you sound is there. Union sound is what? Y, and Y is what? Consonant. That's why we are using here a, not n. उसके लिए n नहीं लगाते हम लोग. Getting it? So one simple thing will matter a lot. ये बेसिक ग्रामर की चीजें आपको बहुत ज्यादा आगे सता सकती हैं. नेक्स्ट वन. नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द टेंसेस. अब हम लोगों को इंग्लिश बोलने नहीं आता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होता है हमारे पास में टेंसेस बराबर नहीं है. अब टेंसेस के अंदर भी फॉर्मूला क्या है वो बहुत ज्यादा मैटर रखता है कि कब आप लोगों को कौन सा चीज याद रखना है, कब कब कौन सा बोलना है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव मोर देन 30 टेंसेस इन इंग्लिश. गारंटी दे रहा हूं मैं, यहां से गारंटी छाती ठोककर बोलता हूं, स्कूल में टीचर्स लोग को भी पता नहीं है मैं आपको वो टेंसेस पढ़ाने वाला हूं. इफ यू सी हियर, आई एम गोइंग टू विजिट माय अंकल नेक्स्ट वीक. व्हाट टेंस इज दिस? कौन सा टेंस है? कैन यू प्लीज आंसर मी? प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स. व्हाट टेंस इज दिस? आई एम गोइंग टू विजिट माय अंकल नेक्स्ट वीक. I am going to visit my uncle next week. Simple present tense, wrong. Future tense, wrong. Correct. It is what? Future decided tense. ये वो tense है जो कि हमारे यहाँ पर इंडिया में लोकल स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता है, नहीं पढ़ाते हमारे यहाँ पर. So if you see here, ये tense है future decided tense. क्यों, कब, कहाँ, कैसे यूज होता है आगे मैं आपको बताऊंगा. एक क्वेश्चन मेरा और है. Why can't we say I am needing? अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से. Simple question is there. We say I am going, correct? I am going. We say I am going. We say I am dancing. I am writing. I am sleeping, correct? But why can't we say I am needing? Why can't we say I am liking? Why can't we say I am hating? Can we say like this? I'm hating, I'm liking, I'm needing? No, absolutely no. Why? Why? My question is there. Why? Do you have any answers? Why can't we say I'm liking, I'm needing, I'm hating? क्या हम लोग ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं? हम लोग बोलते हैं I'm going, I'm dancing, I'm writing, I'm sleeping, I'm listening, I'm speaking, I'm sitting, I'm standing, I'm walking, but we can't say I'm needing, I'm liking. क्यों नहीं बोल सकते? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से. अच्छे टीचर्स को नहीं पता है क्यों नहीं बोल सकते, बट I'll be teaching you. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे रहता है, क्यों रहता है, कहां रहता है. नेक्स्ट वन, टेंसेस. अब हमारे यहाँ पे लोग बोलते हैं डू लिटिल थिंग्स मैटर. क्या छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं क्या? मैटर करती हैं क्या? हाँ, छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. Why? मैं आप लोगों को एक स्टोरी बोलना चाहता हूं. क्या मैं आपको स्टोरी बोलूं? कितने लोगों को सुनना है स्टोरी? कैन यू प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. क्या आप लोग स्टोरी सुनना चाहेंगे? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. Okay, let me tell you over a short story. Once what happened, there was a company, and the company had a policy. Whenever the company they used to recruit an employee, the owner used to give the offer letter. एक कंपनी था, वो कंपनी का पॉलिसी था कि वो जब कोई भी एम्प्लॉय को, बड़े मैनेजर को रिक्रूट करते थे, उसका जो सीईओ था, कंपनी का मालिक जो था, वो उसको ऑफर लेटर देता था उसके हाथ से. सो दे हैव रिक्रूटेड अ जनरल मैनेजर फॉर अ कंपनी. कंपनी के लिए जनरल मैनेजर उन लोगों ने अपॉइंट किया, इंटरव्यू लिया उन लोगों का, और वो जनरल मैनेजर को वो मालिक ने बुलाया होटल में. दैट ओनर कॉल्ड हिम इन द होटल एंड दे वेंट फॉर द लंच. As they went for the lunch, they ordered their soup. तो उसने क्या किया, मालिक ने वो मैनेजर को बुलाया वहां पर होटल में लंच के लिए. दोनों ने लंच के लिए बैठा और वहां पर उन लोगों ने सूप ऑर्डर किया.
After ordering the soup, the owner was looking at the manager. वो ओनर मैनेजर को देख रहा था. So what that manager did, वो जो न्यू एम्प्लॉय था जिसको हायर किया था कंपनी वालों ने, that manager what he did, he took the salt cellar and started pouring into the soup. He stirred it and started drinking. उसने क्या किया, सॉल्ट सेलर उठाया, सॉल्ट डाला सूप में, उसको घोला और पी गया. ओनर ये बात देख रहा था. एट द एंड ऑफ द लंच दे शुक हैंड्स, और वो ओनर उसको बोला, ओके गाय, ओके जेंटलमैन, माय एचआर टीम विल टॉक टू यू. मेरी एचआर टीम आपसे बात करेगी. सी यू, बाय. उसने उसको ऑफर लेटर नहीं दिया. वो उसको ऑफर लेटर देने के लिए आया था, उसने उसको ऑफर लेटर नहीं दिया. वो एम्प्लॉय को ऑफर लेटर नहीं दिया, मैनेजर को. As that owner went to the company, the HR manager welcomed him. जैसे वो मैनेजर वहां पे जब जैसे वो सीईओ कंपनी में गया, मालिक कंपनी में गया, तो उसका वेलकम किया मैनेजर ने, उसके एचआर मैनेजर ने. ओ सर, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव रिक्रूटेड अ न्यू जनरल मैनेजर फॉर आवर कंपनी. तो उसने बोला, सॉरी, आई हैवंट रिक्रूटेड दैट मैन. मैंने वो आदमी को मेरी कंपनी में नहीं लिया, मैंने उसको ऑफर लेटर नहीं दिया. ये देखो ऑफर लेटर मेरे पास में. That general manager asked him, sorry, the HR manager asked him, sir, why? क्यों नहीं दिया सर आपने उसको? He said, we went for lunch, we ordered their soup. As the soup came on the table, he started drinking the soup. He started pouring the salt and started drinking. कि जब हम लोग होटल गए, हम लोगों ने वहां पर होटल में सूप ऑर्डर किया. जैसे सूप टेबल पर आया, उसने उसके ऊपर नमक डाला, घोला और पी गया. तो एचआर मैनेजर बोला, सर उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? So the owner was there. He asked him, don't you think it's a great thing? Don't you think it's a serious thing? If you don't think, then you will be the next to go out of my company. आपको नहीं लगता ये सीरियस चीज है? अगर आपको नहीं लगता है तो आप मेरी कंपनी में दूसरे इंसान रहेंगे जो अभी बाहर जाएंगे कंपनी से. बोले, सर हुआ क्या? उसने बोला, मैं ऐसे इंसान को कैसे ले सकता हूं मेरी कंपनी में, जो कि कंपनी के अंदर ऐसे आदमी को मैं कैसे लूंगा जो कि देखता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है और डायरेक्टली सॉल्यूशन लेता है. उसने टेस्ट किया ही नहीं था, सूप को टेस्ट किया नहीं और डायरेक्टली उसके अंदर नमक डालना स्टार्ट किया. मतलब ऐसा इंसान को मैं कैसे ले सकता हूं मेरी कंपनी में जो प्रॉब्लम को देखता ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता है. अगर उसमें ऑलरेडी नमक होता था ज्यादा तो कौन पीता था वो? मीन्स व्हाट, अल्टीमेटली हाउ कैन आई रिक्रूट अ पर्सन इन माय कंपनी that who doesn't look after the problem and directly goes for the solution? Can I hire such kind of person? No. Do little things matter? Yes, they matter a lot. छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. एक छोटी चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है. एक और स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है. एक मर्तबा क्या हुआ, एक वॉर ग्राउंड के अंदर झगड़ा चल रहा था, वॉर हो रहा था, वॉर दो ट्राइब्स के बीच में. तो वॉर के लिए दोनों भी ट्राइब्स खड़े थे मैदान में, वॉर ग्राउंड में, जस्ट फॉर द फाइट. एंड द किंग्स वर एट द फोर्ट. उन लोग के जो किंग्स थे वो फोर्ट पे थे. द किंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड विद ईच अदर. वो किंग लोगों ने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया एक दूसरे के साथ में. एंड दे रोट अ लेटर एट द टाइम, प्लीज हैव पीस, डोंट फाइट. फाइट नहीं करना, पीसफुली कॉम्प्रोमाइज हो गया है. एंड दे हैव रिटन द लेटर एट द टाइम. वो टाइम पर ना व्हाट्सएप था, ना मेल था, फेसबुक कुछ नहीं था. They have given that message to the messenger. The messenger took the message, that letter, and went on the horse towards the war ground. While going, he fell down and passed away. वो मैसेंजर ने क्या किया, मैसेज लिया, लेटर लिया, घोड़े पर बैठा जा रहा था. जाते जाते बीच रास्ते में घोड़ा पलटी हो गया, वो नीचे गिरा, मर गया. वो आदमी मर गया. ड्यू टू दैट देयर वाज द वॉर. और वहां पे वॉर ग्राउंड में क्या लगा वो लोगों को कि अपना राजा मर गया है. उन लोगों ने झगड़ा स्टार्ट कर दिया. And thousands of people have been killed. हजारों लोग मर गए. आपको मालूम है किसकी वजह से? छोटी सी चीज की वजह से. अपन बोलते हैं ना, चलता है ना, that चलता एटीट्यूड is really very dangerous. आपको मालूम है घोड़ा गिरा क्यों है? Because there was a horseshoe. हॉर्स का शू रहता है ना, horseshoe, उसके अंदर नीचे नाल मारते हैं, उसके अंदर नेल मारते हैं, नेल, खिल्ला मारते हैं हॉर्स शू के नीचे. ये सुनो, उसमें जो खिल्ला मारते, तो जो खिल्ला मारने वाला आदमी था, नेल मारने वाला आदमी था, उसने क्या किया, एक किल्ला कम मारा उसके अंदर. चलता है ना, अपने इधर रहता ना, आओ चलता की रावड़े की काय 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 होते, चलता ना रे, चलता है ना. उसने एक किल्ला कम मारा उसके अंदर. वो कम मारने की वजह से हॉर्स का जो शू था वो ढीला पड़ गया. वो ढीला पड़ा जिसकी वजह से हॉर्स
गिर गया, हॉर्स गिरा तो वो आदमी मर गया, आदमी मर गया तो उधर वो लेटर नहीं गया, लेटर नहीं गया तो उधर झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा हुआ तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए। किसकी वजह से? एक किले की वजह से। चलता है क्या? नो। डू लिटिल थिंग्स मैटर? यस, इट मैटर्स अ लॉट। बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्यों? मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल देने वाला हूं, हैव अ लुक हियर। बहुत ज्यादा मैटर करती है चीजें। फॉर एग्जांपल कैपिटलाइजेशन। मेरे क्लास में मैं आपको सिर्फ बोलना नहीं बल्कि मैं आपको लिखना भी सिखाने वाला हूं, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट। फॉर एग्जाम्पल कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इंग्लिश लिखते कैसे हैं वो भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल RAM, एक ही वर्ड है RAM, उसको लिखने का अलग अलग तरीका है। इफ यू सी हियर RAM, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। इफ यू सी हियर RAM, R is capital, RAM, everything is small, and RAM, everything is capital. If you see here guys, RAM, only R is capital. Why? Because it's the name of a person. Ram, लड़के का नाम है। RAM, RAM, मेंढा होता है ना, मेंढा, मेंढा असतो ना, मेंढा याडका, मेंढे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रैम। इट्स एन एनिमल। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बॉस का नाम है राम और आप लोगों ने शादी के कार्ड पे लिखा राम, ऐसे लिखना था, आप लोगों ने ऐसे लिखा, मतलब क्या हो जाएगा? मेंढे तू भी शादी को आओ। बोलना चाहिए था राम सर शादी को आओ, हो जाएगा क्या? मेंढे तू भी शादी को आओ। बिकॉज ऑफ वन सिंपल मिस्टेक, करेक्ट, बिकॉज ऑफ वन सिंपल मिस्टेक पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। किसकी वजह से? खाली एक आर कैपिटल का स्मॉल हुआ तो। और वही अगर आप लोगों ने राम RAM फुल कैपिटल में अगर लिखा, इट विल बिकम रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का मोबाइल का रैम होता है ना, वो रैम हो जाएगा। किसकी वजह से? सिर्फ एक कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक की वजह से। एक आर कैपिटल हुआ नाम बन जाएगा, एक आर स्मॉल हुआ एनिमल बन जाएगा, एक आर कैपिटल पूरा रहा तो शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। सेम केस, सेम केस। फॉर एग्जाम्पल ईव, ईव इज द नेम ऑफ अ गर्ल, लड़की का नाम है ईव। वो ईव का अगर मैंने ई अगर स्मॉल किया तो ये इवनिंग वाला ईव हो जाएगा, इवनिंग। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इवनिंग। सी इन द ईव, अमेरिका वगैरह में बोलते हैं सी इन द ईव, ईव इवनिंग। एंड व्हाट इज दिस ईव? इट्स द नेम ऑफ अ गर्ल, लड़की का नाम है वो। गेटिंग इट? सेम केस। अभी ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉन, लड़के का नाम है, कैपिटल J जॉन, इट्स द नेम ऑफ अ बॉय। और वही जॉन का अगर मैं J अगर स्मॉल अगर करता हूं तो इट विल बिकम टॉयलेट। लड़के का नाम है जॉन J, स्मॉल J किया तो उसका मतलब होता है टॉयलेट। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को एग्जाम्पल डिक्शनरी में से देता हूं, प्रूफ, कुछ भी चीज झूठी नहीं रहेगी, प्रूफ दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जॉन, स्मॉल J से आपको जॉन दिख रहा है, इधर लिखा हुआ है स्मॉल J से जॉन, इट मीन्स व्हाट? अ स्मॉल J से जॉन लिखा हुआ है, इट मीन्स मेनली नॉर्थ अमेरिकन, अ टॉयलेट, इट मीन्स व्हाट? टॉयलेट। स्मॉल J से जॉन रहेगा उसका मतलब होता है टॉयलेट। जॉन आपके सर का नाम है, कैपिटल में लिखना चाहिए था सर जॉन, आप लोगों ने स्मॉल में लिखा, क्या हो जाएगा? टॉयलेट। तुम्ही पण लग्नाला है, टॉयलेट आप भी शादी को आइए। बोलना चाहिए था जॉन सर शादी को आओ, हो जाएगा क्या? टॉयलेट आप भी शादी को आओ। क्यों? एक मिस्टेक की वजह से। ओनली वन सिंगल J चेंज इनटू स्मॉल J। सेम केस पीटर, लड़के का नाम है, वही पीटर का P अगर स्मॉल किया तो गाली हो जाएगा, बहुत गंदी गाली है, देना नहीं। पीटर लड़के का नाम है, पीटर P कैपिटल, स्मॉल पीटर गाली है। सेम केस जैक, लड़के का नाम है जैक, जैक स्पैरो, वही जैक अगर हम लोगों ने J अगर स्मॉल J लिखा तो गाड़ी उठाते मालूम है आप लोग जैक पर, वो वाला जैक हो जाएगा। वन सिंगल मिस्टेक कैन कॉज यू वेरी ग्रेट डैमेज। एक छोटा मिस्टेक करेंगे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर। सेम केस एक मर्तबा क्या हुआ, अब फॉर एग्जाम्पल जॉब है, जॉब, स्टीव जॉब एप्पल कंपनी का मालिक है, और जॉब स्मॉल J से काम वाला जॉब होता है। एक मर्तबा हुआ ये, एक थेरापिस्ट था, फिजियोथेरापिस्ट, दिख रहा है आपको यहाँ पर, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और लिखने के बाद में एडिटर को दिया, फॉर व्हाट? प्रिंटिंग। दैट एडिटर कमिटेड वन सिंगल मिस्टेक। वो एडिटर ने वो थेरापिस्ट के स्पेलिंग के अंदर एक छोटा सा मिस्टेक किया। उसने क्या मिस्टेक किया? उसने थेरापिस्ट के स्पेलिंग में सिर्फ एक छोटा सा स्पेस दे दिया, थेरापिस्ट की स्पेलिंग में यहां पर स्पेस दिया, क्या बन गया वो? द रेपिस्ट। ओ माय गॉड, थेरापिस्ट बिकेम द रेपिस्ट। डॉक्टर साहब डायरेक्ट झटके में बलात्कारी बन गए इधर तो। ओ माय गॉड, चलेगा? चलेगा क्या? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू आर सीइंग समथिंग न्यू।
Please put into the chat box. How many of you are enjoying and seeing something new? कितने लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिला है? Please put in the chat box. एक थेरापिस्ट की स्पेलिंग के अंदर सिर्फ एक मिस्टेक करते हैं, एक मिस्टेक किया और वो थेरापिस्ट बेचारा द रेपिस्ट बन गया. किसकी वजह से? सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से. ओनली स्पेस. चलता है क्या? नो. वेरी डेंजरस. दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन. नेक्स्ट, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या होता है? इन, ऑन, आई, एट, आउट, अप, डाउन, अगेंस्ट, ओवर, अबव, अगेंस्ट. ये सब प्रीपोजिशन है. हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर लोकल इंग्लिश में जो हम लोग बनाते हैं उसके अंदर आधे से ज्यादा हम लोग रॉन्ग प्रीपोजिशन लगाते हैं, रॉन्ग इंग्लिश बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ अभी जैसे कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. करेक्ट? रॉन्ग. गलत. इफ यू आर सेइंग यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, रॉन्ग. ये कौन सी पोजीशन है? यू आर सिटिंग अपोजिट मी. ये अपोजिट है, एक दूसरे के फेस क्लैश हो रहे हैं, इसको अपोजिट बोलते हैं, इसको इन फ्रंट नहीं बोलेंगे. हमारे प्रीपोजिशन भी रॉन्ग है. दूसरी बात, हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं. नेवर ट्रांसलेट एनी लैंग्वेज. हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? पीटर इज गोइंग टू मैरी विथ एना. रॉन्ग. मैरी विथ नहीं लगना चाहिए, विथ इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. मतलब पीटर एना के साथ में जाकर किसी तीसरी से शादी करेगा. पीटर इज गोइंग टू मैरी एना. एना से शादी कर रहा है, एना के साथ में नहीं. हम लोग लगाते हैं एना के साथ में जाकर शादी कर रहा है. रॉन्ग सेंटेंस. हम लोगों को प्रीपोजिशन कहां लगाना चाहिए, कब, कैसा लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, पता होना चाहिए. नेक्स्ट वन, वोकैबुलरी. आज आप लोगों को इंग्लिश बोलने नहीं आता है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है वोकैबुलरी, जिसको आप लोग मराठी में बोलते हैं शब्दकोश, उर्दू में बोलते हैं लफ्जों का जखेरा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं वोकैबुलरी, वर्ड पावर. आज अपने पास में वर्ड पावर नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग के पास में जो वर्ड पावर है वो आधे से ज्यादा रॉन्ग है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्या बोलते हैं? बॉल पेन. रॉन्ग वर्ड. बॉल पेन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लैंड में अगर आप लोग जाकर बोलेंगे कैन आई हैव बॉल पेन, वो बोलेंगे व्हाट इज दिस बॉल पेन? नो सॉरी, वी डोंट हैव एनी बॉल पेन, बैट पेन, स्टंप पेन, ग्राउंड पेन, स्टेडियम पेन. ऐसे कुछ भी नहीं होता है. बॉल पेन इज कॉल्ड बीरो. इंग्लिश में बॉल पेन को बीरो बोलते हैं. अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं लोग? कोलगेट देना, निरमा देना. वो कोलगेट दो, निरमा दो, कंपनी का नाम है वो. बॉल पेन गलत. दैट इज व्हाट बीरो. नेक्स्ट, कचरे के डब्बे को हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं? डस्टबिन. डस्ट का मतलब होता है धूल. कभी धूल पकड़ के हम लोग उसके अंदर डालते हैं क्या? धूल डालते हैं हम लोग? नो, हम लोग उसमें डालते हैं कचरा. सो डस्टबिन इज अ रॉन्ग वर्ड. इट्स व्हाट? ट्रैश बिन, वेस्ट बिन, गार्बेज बिन. डस्टबिन इज अ वेरी वेरी रॉन्ग वर्ड. नेक्स्ट वन, ब्लैक बोर्ड. स्कूल के अंदर देखा ना हम लोगों ने, ब्लैक बोर्ड रॉन्ग. ब्लू बोर्ड भी होता है, ग्रीन बोर्ड भी होता है, ग्लास बोर्ड भी होता है. सबके नाम लेंगे क्या? नो, दैट्स व्हाट एक्चुअली. ब्लैकबोर्ड रॉन्ग वर्ड, चॉकबोर्ड इज करेक्ट वर्ड. आई कैन प्रूव यू फ्रॉम इंटरनेशनल बुक, अमेरिकन बुक से बता सकता हूं मैं आपको प्रूव करके. नेक्स्ट वन, व्हाइटनर. हम लोग लगाते हैं ना व्हाइटनर, रॉन्ग वर्ड. व्हाइटनर इज ऑल्सो रॉन्ग वर्ड. दैट्स व्हाट? करेक्शन फ्लूइड, करेक्शन पेन. करेक्शन फ्लूइड, करेक्शन पेन. वो व्हाइटनर अगर आपके पास में रहेगा, उसके ऊपर देखो लिखा हुआ रहता है करेक्शन पेन. अपने यहाँ पर सब लोग बोल रहे व्हाइटनर, 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 व्हाइटनर. रॉन्ग वर्ड. नेक्स्ट वन, बिस्लरी. एक्चुअली बिस्लरी इज अ ब्रांड नेम. Bisleri is not a correct name. Bisleri, wrong word. Mineral water, correct word is there. Mineral water. Bisleri. हमारे पास में जो vocabulary है वो आधे से ज्यादा vocabulary भी wrong है. Next one, pronunciation. अब आती है एक और चीज, आवाज, बोलने का तरीका, pronunciation. लड़की को क्या बोलते हैं? Girl. हम लोग क्या बोलते हैं? Girl. She is a girl. Wrong. That's what girl. Next one, pronunciation. अरे आज सुबह मेरा अलार्म ही नहीं बजा. अलार्म नहीं है वो, अलार्म. इट इज अलार्म. आर इज साइलेंट. व्हाई? मैं आपको सेशन में बताऊंगा. नेक्स्ट वन, सबसे मेजर मिस्टेक यहाँ पर टीचर्स लोग भी करते हैं, आस्क्ड लॉक्ड. इट इज नॉट आस्क्ड लॉक्ड. हम लोग वहां पर क्या करते हैं? आस्क्ड, आई आस्क्ड यू, ही लॉक्ड द रूम. इज दिस इंग्लिश? ऐसा लग रहा है मलयालम या फिर कन्नड़ा बोल रहा है कोई. तो वो आस्क्ड लॉक्ड नहीं है. क्या है वो? आस्क्ड लॉक्ड. ऐसा क्यों? उसके पीछे रूल है. नेक्स्ट, crochet. It is not crochet. Crochet. It's what? Restaurant. Original word क्या है? Restaurant. Restaurant. Next one, resume. आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं ना, pay attention. आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं, जाते के साथ में आप लोग फेल हो जाएंगे. क्यों? अगर आप लोग आपके सीवी के ऊपर, आपके रेज्यूमे के ऊपर अगर आप लोग ऐसे लिख रहे हैं तो फेल हो जाएंगे. क्यों? जब वो देखेगा कि इसने रिज्यूम लिखा है, फेल कर देगा आपको, रिजेक्ट कर देगा वो. बिकॉज व्हाट डू यू मीन बाय रिज्यूम?
टू कंटिन्यू। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं, वहां पे एक ऑप्शन आता है रिज्यूम, टू कंटिन्यू। एक्चुअली आपको वहां पर लिखना चाहिए था रेज़मे, दैट्स व्हाट, रेज़मे, इट इज व्हाट रेज़मे। आपको दिख रहा है इसके ऊपर मैंने एक्यूट एक्सेंट लगाया है, रेज़मे। ऐसा अगर आप लोग लिखेंगे रेज़मे, सीवी, ये करेक्ट है। ये रिज्यूम इसका मतलब होता है कंटिन्यू, गलत। रेज़मे लिखेगा, कंपनी बोलेगा ओ माय गॉड ये बंदा पढ़ा हुआ है, जल्दी से हायर करो इसको, ये बंदा लिखा पढ़ा लिखा है, ढक्कन नहीं है, पागल नहीं है वो, हायर दिस पर्सन। रेज़मे, इट इज नॉट रिज्यूम। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट फिलिप, फोटो, फोन, इट इज फोटो, फिलिप, फोन। साउंड कैसे निकालना है, उसके पीछे क्या रूल है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज दिस वर्ड, कॉलम, वी डोंट से कॉलम नो, एनी साइलेंट, व्हाई, there is a rule. Next, rose, do we say rose sir, ending with s, and the sound is what, rose, rose, it's not rose, it is rose, rose, sound is z, why, there is a rule, I'll show you. Next, pronunciation की mistakes होते हैं हमारे यहाँ पर। For example, we say सीधा जाओ जाके टर्न लो, गलत। एड्रेस बताते हैं टाइम पर हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न, एक्चुअली दैट्स व्हाट टर्न। गो स्ट्रेट अहेड एंड टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। we say turn left, turn right. फॉर्मल लोग कैसे बोलते हैं, turn, world, work, हम लोग क्या बोलते हैं, turn, world, world cup. Next, what, we don't say what, we say what, what, what's your name, what's your designation, what's your father do, what's your mother do, what's your favorite color, so what. Next, also, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है also बोलते हैं, wrong, that's what also, 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 it is not also. Next, अभी हमारे एक टीचर थे, वो क्या बोलते थे, it is very important, important का मतलब होता है गे, जो कि ना आदमी है ना औरत है। अगर मैं बोलूंगा आप लोगों को it is very important, लिख के लो, oh my god, important means what, जो नपुंसक होता है, ना आदमी होता है ना औरत होता है, actually that's what important, 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 getting it. Next one, what is this, quit, quiet, quiet, ये जो लास्ट वाला है ये है क्वाइट, शांत, क्वाइट। अपने टीचर क्या बोलते थे, कीप क्वाइट, मतलब काफी रखो, काफी रखो। क्वाइट मतलब यानी काफी, इनफ, getting it, it's quite good, that's what this one. And what is this quiet, शांत, कीप क्वाइट। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी मिस्टेक किया पूरा उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी हियर VEIL, वेल, वेल का मतलब क्या होता है, घूंघट, घूंघट होता है ना, घूंघट, उसको बोलेंगे वेल, वेल। नेक्स्ट एक आता है वेल, VEIL, वेल, and WIL, वेल। See the pronunciation, see my lip sync, see my lip sync, वेल V से, वेल W से, पूरा साउंड चेंज होता है। अगर आप लोग बोल रहे हैं वेल V वाला, इसका मतलब होता है घूंघट, और ये वेल मतलब है नहीं चिल्लाना, चिंगाड़ना, चिल्लाना, बोमलने। अब मुझे बोलना चाहिए था इंडियन ब्राइड्स टेक वेल, इंडिया की दुल्हनें वेल लेती हैं, घूंघट लेती है। और अगर मैंने बोला इंडियन ब्राइड्स वेल, इंडिया की दुल्हनें बहुत बोमलती है, बहुत चिल्लाती है, literally the meaning will change. Why? Because if this one V and one W. For example, अगर आप लोग गए एम्प्रेस गार्डन में, जस्ट जोकिंग, हाँ ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, सॉरी। अगर आप लोग एम्प्रेस गार्डन में गए, वहां पे आप लोग ने जाकर उसको बोला, किसको, दीदी को, आई लो यू, मैं आपको नीच कर देता हूं, मैं आपको तुच्छ कर देता हूं, मलिच्छ कर देता हूं, पकड़ के चप्पल से मारेगी वो। क्या बोलना चाहिए था, I love you. So love, I love you, मैं आपको नीच कर देता हूं, बोलना चाहिए था I love you. So love, लो बहुत ज्यादा मैटर करता है। One single mistake बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा आप लोगों को। This is what pronunciation. Next one, what is high level English? ये तो बेसिक लेवल की मैंने आपको बताया, हाई लेवल की इंग्लिश भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल cliches. फॉर एग्जाम्पल, अब तक हम लोग क्या बोलते थे, किसी ने पूछा हाउ आर यू, हम बोलते थे I'm fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine। बोर हो गया हूं मैं एकदम I'm fine सुन सुनकर।
इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम फाइन वी कैन से, क्या बोल सकते हैं हम फाइन की जगह पर? वी कैन से आई एम हंकी डोरी, आई एम इन द पिंक, आई एम इन द बेड ऑफ रोजेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है आई एम इन द पिंक? मैं आप लोग को डायरेक्टली गूगल से बताता हूं। हैव अ लुक हियर, इफ यू सी हियर, हंकी डोरी मीनिंग, गूगल क्या बोल रहा है? हंकी डोरी मीन्स व्हाट? फाइन, वेल। दुनिया बोल रही है I'm fine, I'm fine, I'm fine, लोकल इंग्लिश। मगर आप लोग क्या बोल जाकर बोलेंगे? I'm hunky dory। नेक्स्ट, I'm in the pink, meaning in the pink means what? Informal है। I'm in extremely good health and spirits, I'm in the pink। दुनिया क्या बोल रही है? I'm fine, आप लोग क्या बोलेंगे? I'm in the pink, I'm in the bed of roses। सेम केस, अभी अगर मुझे बोलना है यार बहुत बुरी कंडीशन में हूं मैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आसमान से गिरा खजूर में अटका, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दैट्स व्हाट कैच 22। आई मीन वेरी बैड कंडीशन, आई मीन कैच 22। बोलने का स्टाइल है ये। नेक्स्ट वन, फिगर्स ऑफ स्पीच, एकदम हाई लेवल का इंग्लिश होता है। अभी आप लोग कहीं पर बैठे हैं बड़े बड़े लोगों के बीच में, तो आप लोग वहां पे कैसे बात करेंगे इंग्लिश में? बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट, टॉयलेट को टॉयलेट बोलेंगे क्या? बुरा लगता है। टॉयलेट की जगह पे आप लोग बोल सकते हैं कैन आई गो टू द जॉन? अभी मैंने बताया ना आप लोग को, टॉयलेट को जॉन भी बोलते हैं। कैन आई पाउडर माई नोज मीन्स व्हाट? कैन आई गो टू द टॉयलेट। अगर हम लोग बोले कैन आई गो टू द टॉयलेट, बहुत चीप और बहुत बुरा लगेगा। वी कैन से कैन आई रिसीव द कॉल ऑफ नेचर? नेचर का कॉल आया है, रिसीव करूं क्या? ऐसा लग रहा है गर्लफ्रेंड का कॉल आया है। ये से नो, तो बोलने का एक स्टाइल होता है। कैन आई रिसीव द कॉल ऑफ नेचर? हाई लेवल की इंग्लिश एकदम ये। नेक्स्ट वन, स्टूपिड। आप लोगों ने अभी तक खाली एक ही वर्ड सुना रहेगा मार्केट में, स्टूपिड 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 स्टूपिड। बट वो स्टूपिड की जगह पे आप लोग कुछ नया बोल सकते हैं। डॉल्ट, पिलॉक, कुक, चार्ली, बॉन्कर्स, लूपी। कितने लोगों ने पहली बार सुने ये वर्ड्स? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों ने पहली बार सुने ये वर्ड्स? ये प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। थैंक यू। तो अभी तक क्या आप लोग बोलते थे? स्टूपिड। स्टूपिड नहीं बोलना है आज के बाद, क्या बोलेंगे? कुछ नया वर्ड यूज करेंगे। तो बोलने का भी अलग अलग स्टाइल है, हाई लेवल की इंग्लिश है। नेक्स्ट, अनवांटेड एडवाइजर। हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, अरे बहुत एडवांस है वो एडवांस को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडवांस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बैक सीट ड्राइवर। ही इज द बैक सीट ड्राइवर। बहुत ज्यादा एडवांस है, कुछ भी जबरदस्ती खुद के दिल से लगाता है। नेक्स्ट, टमेटो। टमेटो होता है ना, टमेटो, टमाटर, उसको इंग्लिश में, हाई लेवल की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लव एप्पल। क्या करने का आज? टमाटे की चटनी बनाने का, सहेली को फोन करने का, हेलो आई एम हैविंग लव एप्पल, आई एम ईटिंग लव एप्पल। हाँ, व्हाट इज दैट, लेट मी कम। वो जो आपके घर आकर देखेगी ना, ओ माय गॉड टमाटे की चटनी, यस, टमाटे को इंग्लिश में लव एप्पल बोलते हैं। ओ माय गॉड, कहां से मिला? सो लव एप्पल इज व्हाट? टमेटो। आप लोग डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं, आपको सब मिलेगा। नहीं मिला तो हमारी गचंडी पकड़ लेना, एकदम सहना ठोक कर बोल रहा हूँ। डेड, अभी अपने यहाँ पे अगर कोई मर गया, अपने चाचा मर गए, तो अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माई अंकल एक्सपायर्ड। रॉन्ग, रॉन्ग। वाई? क्योंकि एक्सपायरी डेट किसकी होती है? मेडिसिन की होती है। मेडिसिन एक्सपायर होने के बाद में हम लोग मेडिसिन को फेंक देते हैं। चाचा को फेंकेंगे क्या? नो, चाचा एक्सपायर हो गया, फेंक देता हूं मैं आपको। रॉन्ग इंग्लिश। एक्सपायरी की जगह पे आप लोग क्या बोल सकते हैं? माई अंकल इज नो मोर, मेरे अंकल अभी नहीं रहे। माई अंकल इज रेस्टिंग इन पीस, अभी वो शांतता में है। माई अंकल इज आइडल, अभी वो चले गए, नहीं अभी कुछ काम ही नहीं करते। माई अंकल इज विद द लॉर्ड, अभी वो भगवान के पास है। ही इज विद द लॉर्ड, अभी ऊपर वाले के पास है। नेक्स्ट, माई अंकल इज इन द हेवन, अभी वो ऊपर है, हेवन में। माई अंकल वॉज पॉप्ड ऑफ, मेरे अंकल टपक गए। ऐसा बोल भी सकते हैं, बट ये थोड़ा इनफॉर्मल है, पॉप्ड ऑफ, टपक गए। ओके, सो डोंट से एक्सपायर्ड, यू कैन से नो मोर, रेस्ट इन पीस। नेक्स्ट वन, ड्रंक। अभी फॉर एग्जाम्पल एक और मेरा क्वेश्चन है, अभी जैसे आप लोग बोलते हैं हिंदी में, मराठी में, बेवड़े को अगर बेवड़ा बोलेंगे तो चलेगा क्या? मारेगा वो, हे मुझे बेवड़ा बोलता है। ये सुनो, बेवड़े को, ड्रंकर को, पिदोड़े को अगर आप लोग बोलेंगे बेवड़े को बेवड़ा, चलेगा क्या? नहीं। बेवड़े को ड्रंक की वजह से आप लोग क्या बोल सकते हैं? कुछ और दूसरा वर्ड बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिप्सी। ड्रंकर बोलेंगे, बेवड़े को बेवड़ा बोलेंगे तो मारेगा पकड़ के, उसकी जगह पे आप लोग बोल सकते हैं टिप्सी। नेक्स्ट, टिडली। नेक्स्ट, लेगलेस। नेक्स्ट, फीलिंग नो पेन, ही इज फीलिंग नो पेन मींस व्हाट? पिया हुआ है उसने। आप जाकर हाय टिप्सी। सो
बोलने का तरीका अलग अलग है. दिस इज हाई लेवल इंग्लिश. नेक्स्ट वन, राइटिंग स्किल्स. आपको मेरे क्लास में राइटिंग स्किल्स भी सीखने के लिए मिलेगा हमारे पास में. दैट्स व्हाट मेल राइटिंग, करिकुलम विचाई, रेज्यूमे राइटिंग, लेटर ड्राफ्टिंग, लेटर कैसे लिखना है, करिकुलम कैसे लिखना है, मेल कैसे लिखना है, रेज्यूमे कैसे लिखना है, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा. Why? Because my students are working in international company at a very good position. उसका क्या प्रूफ है, मैं आज आप लोगों को प्रूफ भी देने वाला हूं. So let's go ahead. राइटिंग स्किल्स के अलावा आपको नंबर्स भी मैं सिखाऊंगा डिटेल में. इंग्लिश के अंदर एक एक चीज मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूं. यहाँ पर नंबर्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस? इट इज 12th. करेक्ट. हमारे यहाँ पर बोलते हैं 12th. रॉन्ग. इट इज नॉट 12th, इट इज 12th. 12th. डिक्शनरी में चेक करो. 12th नहीं है, 12th है वो. 12th नहीं है, 12th है. सेम केस, एक जीरो को बोलने के लिए इंग्लिश में 7 टाइप्स है. वी कैन से जीरो एज जीरो, वी कैन से ओ, वी कैन से लव, वी कैन से नल, वी कैन से नील, वी कैन से डक, वी कैन से नॉट. इंग्लिश में एक जीरो को बोलने के 7 टाइप्स हैं. अगर आप लोग बड़ी एग्जाम कभी देने के लिए जा रहे हैं या फिर आप लोग अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह घूमने के लिए जा रहे हैं, वहां पे आपको ये मिलेगा. टेनिस के अंदर जीरो को लव बोलते हैं. द स्कोर इज लव 3. इंग्लिश में फुटबॉल में जीरो को नील बोलते हैं. फोन नंबर के अंदर इंग्लिश में जीरो को ओ बोलते हैं. कंप्यूटर वगैरह के अंदर वैल्यू नल आती है, जीरो को नल बोलते हैं. साइंस वगैरह के अंदर नॉट बोलते हैं. क्रिकेट में डक बोलते हैं. एक जीरो को बोलने के लिए इंग्लिश में 7 टाइप्स हैं. एकदम डिटेल में आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा. नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन इज मनी. अब यहाँ पर एक बात याद रखना, कम्युनिकेशन मनी है. बहुत सारी चीजें मैंने आपको आज बताया. मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ. शैल आई टेल यू वन स्टोरी? एक स्टोरी सुनना है आप लोगों को, शॉर्ट एकदम, बट आपको बहुत कुछ सिखाएगी. कम्युनिकेशन इज मैजिक एंड कम्युनिकेशन इज मनी. पैसा है पैसा. अगर आप लोगों को पैसा कमाना है, आपका कम्युनिकेशन एकदम जबरदस्त होना चाहिए. देन यू कैन अर्न बेस्ट मनी. सिंपल स्टोरी है. वंस व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ ग्रोसर. एक किराने वाला बनिया था. एंड देयर वाज अ मैन हु लॉस्ट एवरीथिंग एंड ही वाज अंडर अ लोन. एक आदमी था, कर्जे में था बहुत ज्यादा. वो बनिए के पास में आया. उसने आकर बोला, आई वांट टू सेल माय हॉर्स. उसके पास में एक घोड़ा था. उसने बोला, आई वांट टू सेल माय हॉर्स, हाउ मच आर यू गोइंग टू बाय इट? क्या प्राइस में आप बाय करेंगे उसको? सो जो बनिया था, बनिया का दिमाग, वो क्या बोला, आई विल गिव यू 10,000 ओनली. मैं आपको सिर्फ 10,000 दूंगा. बोला, अरे नहीं यार, बहुत कम होता है. द मैन वेंट ऑफ. वो मैन घर पे चले गया, घोड़े वाला. घर जाके खोला, देखा तो घोड़ा मरा हुआ था. ओ माय गॉड, शिट, घोड़ा तो मर गया. घोड़ा मर गया. ओ माय गॉड, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू विद दिस. ही वेंट बैक टू द ग्रोसर. वो आदमी लालच का मारा हुआ, वो वापस से ग्रोसर के पास में गया, बनिए के पास में. उसने बोला, एक्चुअली माय ईयर्स आर नॉट वर्किंग, हाउ मच डिड यू से? द ग्रोसर सेड 10,000. ओके, गिव मी 10,000 एंड टेक अ हॉर्स फ्रॉम माय होम. वो आदमी ने बोला वो बनिए को, 10,000 रुपए मेरे को दे दो और हॉर्स ले लो मेरे घर से. बनिए ने उसको वो टाइम पे दे दिया 10,000 रुपए. शटर बंद करके, दुकान बंद करके, रात में बनिया उसके घर पे गया. When he went his house, when he opened the door, he found that the dead horse was completely dead. उसने देखा, यार हॉर्स तो मर गया है, हॉर्स तो डेड है. The man was completely frustrated. वो एकदम चिढ़ गया था. कौन? वो बनिया. बोला, यार अभी क्या करूं? That man did not cry. उसने रोया नहीं. Now always remember guys, वहां पे उसने रोया नहीं. He started thinking about the solution. उसने सोल्यूशन के बारे में सोचा. एंड व्हाट ही डिड, अगर अपन रहते थे उसकी जगह पे तो, मेरे 10,000 रुपए लेके भागा है वो, मेरे 10,000 रुपए लेके भागा है वो, आप लोग कंप्लेन करते थे, उसके पीछे भागते थे. बनिए ने कुछ नहीं किया, वो ग्रोसर ने कुछ नहीं किया. व्हाट ही डिड, क्या किया उसने? ही लिटरली पोस्टेड एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में उसने एडवर्टाइजमेंट डाला. क्या? बाय अ लॉटरी टिकट वर्थ 1 रुपीज, यू विल गेट अ हॉर्स. 1 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदो और आपको मिलेगा इनाम में हॉर्स. अब 1 लाख लोगों ने वो टिकट खरीदा. अरे 1 रुपए का तो टिकट है, खरीदते हैं, क्या मालूम हॉर्स मिल जाएगा. उसमें से उसने क्या किया, 1 लाख टिकट बेचा. उसके पास में 1 लाख रुपए जमा हो गया. किसके? बनिए के, दुकान वाले के. उसने क्या किया, एक आदमी को विनर बनाया उसमें से. वो आदमी आया, जब उसने देखा, अरे मेरा हॉर्स तो, ये हॉर्स तो मरा हुआ, मेरे को तो ये हॉर्स नहीं चाहिए. उसने उसको 1 रुपए उसको रिटर्न कर दिया. ये तेरे 1 रुपए ले जा. आदमी को कितना बचा वहां पर? 99,999 रुपीज.
उसने स्पेंड कितना किया था? ओनली 10,000। उसको मिला कितना? 99,999 रुपीज। इसको बोलते दिमाग, कम्युनिकेशन। उसने कम्युनिकेशन किया वहां पर लोगों से, उसने दिमाग लगाया। ऑलवेज रिमेंबर गाइज, डू नॉट अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के आगे रोना नहीं, सॉल्यूशंस के ऊपर जाओ। वो जो घोड़े वाला आदमी था, जिसका घोड़ा मारा हुआ था, वो आदमी तो उसका पैसा लेकर भाग गया प्रॉब्लम को देखकर। पर ये जो बनिया था, उसने क्या किया? प्रॉब्लम को देखकर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं किया, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस किया और उसने पैसा कमाया। इसको बोलते दिमाग। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। उसने लोगों से बात किया। कम्युनिकेशन इज मैजिक। आप लोग जितना बात करेंगे, जितना आप लोग बोलेंगे, दैट विल बिकम। आप लोग बात कैसे करते हैं? कैसे बात करते हैं आप लोग? My name is Paul. I'm married and my wife is a doctor. We have 2 children. My daughter is 8 and my son is just 3. My name is Isabel. I'm 19 years old and I'm a student at university. I have one brother. His name is Alan. My mother's a teacher and my father's a taxi driver. Oh my God. Foreigner लग रहा है यार। फॉरेनर लोग ऐसे इंग्लिश बोलेंगे, अमेरिकन ब्रिटिश कंपनी में जॉब मिलेगा, millions rupees कमाएंगे। I'll give you the proof. Let me show you. So the moral of the story is what? Don't be with the problem. Look for the solution. Problem तो जिंदगी भर आते रहेगा, और जो बंदा प्रॉब्लम को लेकर बैठेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये हो रहा है, मेरे पास वो हो रहा है, लॉकडाउन है, ये है, वो बंदा कभी आगे नहीं जाएगा। Look for the solution. Don't go for the problem. Don't go for the problem. Same case, try to have communication. Communication strong बनाओ, कंपनी आपके पास में आएगा खुद पैर पड़ते। Simple. That's what communication is. Money. Is that clear? कितने लोगों को स्टोरी पसंद आया? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को स्टोरी समझ में आया? कितने लोगों को स्टोरी पसंद आया? यस, कि बाबा स्टोरी में कुछ तो भी था। ओके, लेट्स गो। आगे देखते हैं हम लोग आगे की चीजें। अब आगे मैं आप लोगों के सामने कुछ रिजल्ट्स बताने वाला हूं। दिस इज माय स्टूडेंट मिस्टर कैफ। इसको अभी 15 सितंबर को जॉब लगी है। एंड सी द पैकेज 3,22,000। ये बंदे ने सिर्फ ओनली 1 मंथ क्लास किया था मेरा, सिर्फ ओनली 1 मंथ क्लास किया था, ओनली 1 मंथ क्लास किया था वो बंदे ने। एंड सी, आपको मैं रिजल्ट दे रहा हूं उसके सामने, उसका रिजल्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सी ऑन द लिंक। मेरा स्टूडेंट है, सिर्फ 1 महीना क्लास किया, 3.5 लाख रुपए का पैकेज कंपनी दिया अभी 15 तारीख को उसको। लिटरली आप लोगों के सामने मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं। वो बंदा बात कर रहा है, अभी आपको सामने मिलेगा। सी, ये मैं खड़ा हूं, ये मेरे स्टूडेंट है, ये वाला बंदा है वो, ये बंदा। 3.5 लाख रुपए का पैकेज मिला है, आपके सामने ऑफर लेटर रखा हूं मैंने। ही स्पीकिंग हियर, गेटिंग इट? ये सामने उसका ऑफर लेटर है, 15 सितंबर। ये में उसको ऑफर लेटर मिला है 3,22,000 रुपए का, कंपनी ने ऑफर किया है उसको। एडिटिव कंपनी है। नेक्स्ट, अनदर स्टूडेंट इज देयर। 2018 में कॉग्निजेंट में लगा था मेरा स्टूडेंट मिस्टर मोहम्मद रफीक। एंड सी द पैकेज। पैकेज इज व्हाट? 8,49,000। 8 लाख रुपए का पैकेज मिला बंदे को। नेक्स्ट वन, टाटा कंपनी के अंदर लगा था मिस्टर इमरान पठान 2017 में। सी द पैकेज 8,20,000। आपके सामने मैं डायरेक्ट ऑफर लेटर बता रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स का। अरे अभी मेरा स्टूडेंट लगा है अभी रिसेंटली 29 अप्रैल 2021, अभी 2021 अप्रैल के अंदर। सीधा पैकेज 13 लाख, 13 लाख रुपए का पैकेज मिला बंदे को, आपके सामने है। कौन सी कंपनी है? विप्रो, टाटा, कॉग्निजेंट। ये कंपनी में मेरे स्टूडेंट्स काम करते हैं एकदम टॉप लेवल की सैलरी के ऊपर। दिस इज व्हाट इन फ्रंट ऑफ यू। कोई झूठ बात नहीं है, सब आपके सामने है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स। मैं आप लोगों को रिजल्ट दूंगा, लिटरली मैं आप लोगों को लिटरली रिजल्ट्स दूंगा, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ मिलेगा। मुझे एक सवाल आप लोगों से करना है। आई वांट टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई वांट टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लोगों ने अभी तक की जो पढ़ाई की है, मोस्ट ऑफ ऑल आप लोगों के अंदर, अभी जैसे कि मेरे ग्राफ के हिसाब से, अगर मैं जैसे देखता हूं तो मेरे क्लास के अंदर आज जो लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा है, करेक्ट? उसके बाद में जूनियर कॉलेज वाले ज्यादा है, करेक्ट?
उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट्स इतने, ये वर्किंग प्रोफेशनल है, करेक्ट, और ये 10वीं पास किए हुए बच्चे सिर्फ इतने। सो 10वीं वाले को छोड़ देते हैं। आप लोगों ने मिनिमम 12 इयर्स आपके लाइफ के स्कूल को कॉलेज को दिए, आप लोगों ने मिनिमम 15 इयर्स आपके लाइफ के कॉलेज के अपने कॉलेज को दिए, स्कूल को दिए। आपके कॉलेज ने, आपके स्कूल ने आपको क्या दिया 15 इयर्स के अंदर, और आपने कितना पैसा खर्चा किया उधर, कितना पैसा खर्चा किया आप लोगों ने वहां पर? लैक्स, 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs, कितना खर्चा किया? और आपको कॉलेज ने, स्कूल ने क्या दिया है? क्या दिया? सिर्फ ओनली डिग्री। वो डिग्री दिया सिर्फ आपको। जॉब मिला, मैं आपको जॉब दिलाऊंगा, मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा, वो चीज सिखाऊंगा जो आपको जॉब देने वाली है। आपको लिटरली एमएनसी कंपनी के अंदर बड़े बड़े जॉब्स मिलेंगे। 12 lakhs, 13 lakhs, 15 lakhs, 8 lakhs, 6 lakhs। 6 lakhs मतलब यानी 50,000 रुपीज पर मंथ। 13 lakhs, 1,20,000 रुपीज, 1,10,000 रुपीज पर मंथ, लिटरली। अभी आपके 15 साल आप लोगों ने स्कूल में, कॉलेज में दिया, आपको क्या मिला? ओनली डिग्री मिला। वो डिग्री से जॉब नहीं मिली है। जॉब करने के लिए, जॉब का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए इंग्लिश चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, मल्टीपल थिंग्स चाहिए। ये सुनो, वो चीज मैं आप लोगों को देने वाला हूं यहाँ पर। सेकेंड थिंग, आप लोगों ने इतना स्पेंड किया, लाख 2 लाख रुपए स्पेंड किया, फिर भी कुछ मिला नहीं है। आज का ग्राफ मैं आप लोगों को बताता हूं, जो मैंने आप लोगों को लिंक दिया था। इन देम वी हैव स्पोकन इंग्लिश के लिए ये ग्राफ है। इतने लोग बोल रहे हैं स्पोकन इंग्लिश चाहिए उनको, इतने लोग बोलते हैं 25% पब्लिक स्पीकिंग, 24% पीपल आर आस्किंग फॉर इंटरव्यू स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। इफ यू सी देयर, अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ चीजें रखता हूं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च के हिसाब से, अगर आप देखेंगे, इंग्लिश पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है ऑनलाइन, इंटरनेट पे मैंने सर्च किया था, ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है 127 पाउंड्स, 127 पाउंड्स। देखते हैं हम लोग कितना कैलकुलेशन बैठता है, पाउंड्स टू इंडियन रुपीज। 127 पाउंड्स मीन्स व्हाट? 12,884 रुपीज। किसके लिए? ओनली पब्लिक स्पीकिंग। 12,500 रुपए में उन लोग पब्लिक स्पीकिंग सिखाएंगे। नेक्स्ट वन, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, 1 लेक्चर वर्थ 225 रुपीज। एक लेक्चर 225 रुपीज का होता है। अगर ऐसे 80 लेक्चर्स अगर आप लोगों ने बैठा, 80 लेक्चर्स के कितना होता है? 18,000, 12,500 ही पकड़ते हैं, प्लस 18,000 कितना होता है? 30,500। ओनली 2 कोर्सेस, सिर्फ 2 कोर्सेस के, पब्लिक स्पीकिंग एंड स्पोकन इंग्लिश। इंटरव्यू स्किल्स तो रहा साइड में। अब मैं एक ऐसा कोर्स लॉन्च करने वाला हूं जिसके अंदर आपको स्पोकन इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स तीनों भी आपको एक कोर्स में मिलेगा, 3 in 1। आपके हिसाब से ये कोर्स का प्राइस क्या होना चाहिए? कैन यू प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स? जो ये तीनों चीज पढ़ाएगा कोर्स, वो कोर्स के अंदर आपको क्या लगता है कितना प्राइस होना चाहिए उसका? चैट बॉक्स में डालो प्लीज। एक कोर्स में जो तीनों चीज रहेंगी उसका फी कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? थैंक यू नवाज। 50K, 30K, करेक्ट। बट आपके लिए सरप्राइज है मेरे पास में। क्या सरप्राइज है? मैं आपको अभी बताने वाला हूँ सरप्राइज क्या है। ओके, नेक्स्ट वन, आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। कम्युनिकेशन इज मैजिक एंड कम्युनिकेशन इज मनी। एक बंदा है डैन लॉक, वन ऑफ माई फेवरेट मैन। आप लोग इसके बारे में जाके पढ़ सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। डैन लॉक ये बंदा है, ये कम्युनिकेशन के जरिए बताता है कि आप लोगों को बिजनेस कैसे करना है। और आपको पता है डैन लॉक से बात करने के लिए कितना लगता है पैसा? 1 मिनट का $166 लेता है वो। $166 फॉर 1 मिनट टॉकिंग ऑन द फोन। फोन पे बात करने का वो 1 मिनट का $106 लेता है। देखेंगे हम लोग अभी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, $166 1 मिनट का, मतलब नहीं 12,254 रुपए। 1 मिनट का 12,000 रुपए लेता है बंदा वो बात करने का फोन पर। 1 मिनट का 12,000। कम्युनिकेशन इज मैजिक। सोचो क्या पढ़ाता रहेगा, क्या बोलता रहेगा वो, कि उसकी वजह से लोग उसके पास में लिटरली आते हैं। आपके सामने मैंने अभी आप लोगों को रिजल्ट दिखाया डायरेक्टली, ऑफर लेटर्स ऑफ माय स्टूडेंट। ये चीज आप लोगों को आगे चल के बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो अभी सोचो, जो कोर्स मैं आप लोगों को ऑफर करने वाला हूं अभी यहाँ पर, विद पब्लिक स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू स्किल्स,
इसका फी क्या होना चाहिए? फॉर यू इट इज व्हाट, जस्ट व्हाट, ओनली व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू हैव ओनली, आज के लिए सिर्फ हमारा आज का एक ऑफर है आप लोगों के लिए, मेरे मेंटीज के लिए. दैट्स व्हाट द ऑफर विल बी देयर फॉर 3 months कोर्स, 18,000 रुपीज ओनली. 18,000 रुपीज उसका फी का कोर्स है, जिसके अंदर आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश, इंटरनेशनल इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, आपको चारों चीजें वहां पर सीखने के लिए मिलेगी इन वन कोर्स इन डिटेल. एंड दैट्स व्हाट ओनली विथ 18,000. And second thing is what? Accent. For example, my name is Andre, I'm 9 years old and I'm from Germany. My name is Olga, I'm 16 and I'm from Russia. Hello, my name is Greg, I'm 18 years old and from the United States. This is Komiko, she's 1 year old and she's from Japan. My name is Katerina, I'm 20 and I'm from Italy. बोलने का जो तरीका होता है एक्सेंट, वो भी आपको वहां पर सीखने के लिए मिलेगा, वर्थ 18,000 रुपीज, ओनली इन 18,000 रुपीज. एंड सेकेंड थिंग, एक और ऑफर आज हम लोगों के लिए, आज सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, द पीपल हु आर joining us and paying the full fee, they will get the full kit. उन लोगों को फुल किट मिलेगा वर्थ 2,500, 2,500 रुपए का कैम्ब्रिज की तरफ से पूरा उन लोगों को किट मिलेगा जो लोग फुल फी पे करने वाले हैं एडमिशन के लिए. डेमो अभी आप लोगों ने देखा है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी. जो बंदे फुल फी पे करेंगे उसको पूरा किट मिलेगा. किट के अंदर आप लोगों को मिलेगा कैम्ब्रिज का फाइल विद बेस्ट क्वालिटी फाइल विथ ग्रेट बुक. पूरा कैम्ब्रिज का आपको हार्ड कॉपी में आपको पूरा बुक मिलेगा, एकदम बेस्ट क्वालिटी का बुक है. उसके अलावा आप लोगों को किट के अंदर मिलेगा पूरा स्टेशनरी, full stationery will be there in the kit. And the people who are joining and paying the full fee, they will get the kit free of cost. उन लोगों को kit free मिलेगा जो भी बंदे full fee pay करेंगे. Okay, so this is it from my side. If you have any questions, any doubts regarding this, you can ask me. Yes, is there anyone who has any question? Second thing, हर क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी. Every class, every day sessions recording we will be getting. Monday to Friday क्लास होता है, क्लास रहेगा हमारा स्काइप के ऊपर और आपको हर दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्लास का. ओके, अगर आप एब्सेंट रहे, अगर आप लोगों को समझो कोई क्लास मिस हो गया, नेटवर्क का इशू रहा, आपको क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा डेली. दूसरा, आप लोगों को जो डिजिटल बुक्स है वो पूरे फ्री मिलेंगे. आप लोगों को बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज, रिकॉर्डिंग्स सब आपको फ्री मिलेगा ऑनलाइन, डिजिटल. गेटिंग इट? स्काइप पर आप लोगों का फुल प्रैक्टिस होगा, इंटरेक्शन रहेगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, ईच बैच विल कंटेन ओनली 12 स्टूडेंट्स. ओनली 12 स्टूडेंट्स रहेंगे. दिस इज स्पेशल बैच. 12 स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं लूंगा मैं. अगर एक भी स्टूडेंट रहेगा उसको वेट करना पड़ेगा अगर एडमिशन फुल हो गए तो. ओके, एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा आप लोगों का, और कुछ भी रहेगा आप लोगों को बिल्कुल एकदम फेस टू फेस वहां पे हम लोग क्वेरी सॉल्व करके देंगे. आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे वहां पर, आपको ऑडियोज, वीडियोस वगैरह सब कुछ वहां पर मिल जाएगा. डेली अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे. एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट. आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कैम्ब्रिज की तरफ से, सर्टिफाइड. ओके, एनी क्वेश्चंस टू एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी. स्काइप पे इसके लिए पढ़ाने वाले हैं क्योंकि आप लोगों को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी हम लोग देने वाले हैं, कंपनी में कैसे जाते हैं. क्योंकि ऑलरेडी आई एम वर्किंग इन अ कंपनी. मैं कंपनी में सीनियर लेवल पे काम करता हूँ एज ए सीनियर टेक्निकल ट्रेनर, जहाँ पे मैं इंजीनियर्स लोगों को ट्रेन करता हूँ व्योम लैब्स कंपनी के अंदर. तो वहां पे आप लोगों को लिटरली कंपनी में जाते कैसे, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, डील कैसे करना है, कंपनी में बैठना कैसे, बोलना कैसे, मैनेजर से कैसे बात करनी है, क्लाइंट से वैसे कैसे बात करना है, आपको सब चीज में डिटेल में सिखाऊंगा वहां पर. सो वन सिंगल कोर्स इज देयर अंडर वन रूफ. Multiple things you are going to learn from my side, and the fee is what? Absolutely only 18,000 rupees. Okay, and time will be there in the evening 8:30. Time हमारा रहेगा क्लास का 8:30, and class is going to start from Monday 27th of September. 27th September से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है Monday evening 8:30 का. Okay, and the people who are paying full fee, they will get the full kit. का kit मिलेगा. And if you're not paying full fee, if you're paying half fee, you will get some kind of the other things free in books. आपको एडवांस लेवल की बुक्स आपको डिजिटल फ्री मिलेंगे. ओके, एनी क्वेश्चंस टू एनीवन? एनी क्वेश्चंस टू एनीवन? किसी कुछ सवाल वगैरह कुछ करना है, कुछ पूछना है किसी को?
I believe all of you have my WhatsApp number. जिसको कुछ enquiry वगैरह करना है, जिसको कुछ बोलना है, कुछ enquiry करना है, they can have my WhatsApp number and they can text me there. This is my WhatsApp number. You can text me there and we can have the admission. आपको वहां पर admission मिल जाएगा. ये मेरा WhatsApp number है. You can copy it. Okay. And see, only हमारे पास में only 10 seats, 12 seats है. After 12 seats, एक भी admission लिया नहीं जाएगा, वो बंदे को फिर wait करना पड़ेगा. Okay. अगर admissions full हो गए, बंदे को wait करना पड़ेगा for next 4 months. 4 months के बाद में new batch रहेगा फिर हमारा. All right. If you have any questions, any doubts, you can text me on this number on WhatsApp. We can have a word. Directly आप लोगों को वहाँ पर सीट अपनी बुक करानी है. यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट करना है और पेमेंट करके आप लोग यहाँ पर सेंड कर सकते हैं your full name, your mail address and payment screenshot and your registration will be done. Okay. If you have any questions, any doubts, you can ask me here. And I believe that you love the demo. And if you have any questions, डेमो के अंदर आप लोगों को सिर्फ मैं छोटी छोटी चीजें बताया हुआ हूँ. आपको डिटेल में एकदम आप लोगों को मिलेगा क्लास के अंदर सीखने के लिए एक एक चीज डिटेल में. ओके. If you have any questions, any doubts, and always remember, never say never and always have faith in yourself. अपने ऊपर believe रखना है आप लोगों को. And if you have any questions, any doubts regarding that as well, you can ask me. All right. That's it for today. And if you are going to Mr. Ramzan Alam. Okay. Ma'am, can you please unmute him, Mr. Ramzan Alam? Unmute him. He wants to speak something. No, he's not there, I think. Yes, anyone else would like to ask any questions? Any doubts? Thank you. रिकॉर्डिंग्स आपको स्काइप पर मिलेगी सब रिकॉर्डिंग्स आपको स्काइप पर मिलेगी. और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी देयर एज वेल. ओके. सो व्हाट इज दिस रमजान? नो, ही इज नॉट देयर. Okay guys, no problem. For today we are going to stop here. We're going to continue this next time. Okay. If you have any questions, you can text me on this number. We're going to meet again soon. Thank you so much. Bye bye.